अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही खुशी की बात है, हमारे बसवलिंगा मूर्ति स्वामी जी अपने बसवा केंद्र ध्यान मंदिर में इफ्तारी कूटा करके इफ्तारी की दावत रखकर तमाम हिंदू मुसलमान को यहाँ जमा किए हैं। ये हर साल भी ये करते आ रहे थे स्वामी जी। दरमियान में कोरोना की वजह से 1-2 साल मुलतवी हो गया, फिर से शुरू किए हैं। हम हमारी टिप्पू सुल्तान ट्रस्ट की जानिब से और इस मोहल्ले टिप्पू टाउन के मोहल्ले वाले की जानिब से और तमाम यहाँ के सूफिया कराम जितने भी मरकज़ शाहिदीन मशाइखीन हैं, मरकज़ मशाइखीन, इन तमाम की जानिब से मैं बार बार स्वामी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। ऐसा ही आइंदा साल भी इससे ज़्यादा कर सके स्वामी जी। ये कहते हुए मैं काबे में तेरा जलवा काशी में नज़ारा है, काबे में तेरा जलवा काशी में नज़ारा है, ये भी हमें प्यारा है वो भी हमें प्यारा है। हिंदू को मिली गीता, इंजील ईसाई को, मुस्लिम के लिए तूने कुरान उतारा है। ये कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। सर, ಇವತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಟೌನಲ್ಲಿ ಬಸವ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಒಂಥರ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೂನಿಟಿದು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಮಾಜು ಆಯಿತು, ನೀವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್. ಇವತ್ತೊಂದು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಾರ್ಶನಿಕರುಗಳ ಕನಸು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕನಸು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕನಸು ಇದು. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ಒಂದೇ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಆನಂದವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುವಂಥದ್ದೇ ಎಲ್ಲ ದಾರ್ಶನಿಕರ ಮೂಲ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ನಾವು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಥಳದಾನಿಗಳಾದಂತಹ ಸಲ್ಮಾ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಹಾಗೂ ಜಾಹಿದುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಏನಿದೆ, ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಂಬುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾವೈಕ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ ಖ್ವಾಜಾ ಅಜಿಮ್ ಅಲಿ ಶಾ ಚಿಸ್ತಿಯವರು, ಬುರ್ಹಾನ್ ಶಾ ಖಾದ್ರಿಯವರು, ರುಹುಲ್ಲಾ ಶಾ ಖಾದ್ರಿಯವರು, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಜನ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೊಬ್ಬನೇನು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಮೊದಲು ನಾನು ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಜಾಹಿದುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ರವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಸಲ್ಮಾ ಸಿದ್ದಿಕಾರವರು, ಇವರ ತಂದೆಯವರಾದಂಥ ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪು ಟೌನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರವರ ಒಂದು ಕನಸು ಏನಿತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ಭಾವೈಕ್ಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ, ಬಸವ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಲ್ಮಾ ಸಿದ್ದಿಕಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಜಾಹಿದುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ರವರು. 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಮನೆ ಮಗನ ಥರ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ, ಈಗ ಅವರು ನಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪೋಷಕರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಬರದಂತೆ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಸೂಫಿ ಸಂತರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಂಥ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋರು ಹಚ್ಚಲಿ, ಅದೇ ಬೆಂಕಿನಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಬಿದ್ದು ಸಾಯಲಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳುವಂಥ ಜನಗಳಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಕಾನೂನು. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಮೂಲ ಹವ್ವ ಆದಮ್ರವರಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೇ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಾಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಮಾತೃಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳಬೇಕು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮನೂ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಯಾವ ಧರ್ಮನೂ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕವನಲ್ಲ. ಈ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನರಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ನಾವು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ 20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲ, ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿಂದನೂ ನಾವು
ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ಜಾಹಿದುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ರವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಸಲ್ಮಾ ಸಿದ್ದಿಖಾರ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಂದಿದ್ರು ಬಸವ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಬುದ್ಧಿಸ್ಟು, ಸಿಖ್ರು, ಇಸಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ದಂಪತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಅಜಿಮ್ ಅಲಿ ಶಾ ಚಿಸ್ತಿಯವರು, ಬುರ್ಹಾನ್ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ಅವರು, ಹುಲ್ಲಾ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ ನಾವು 15-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರದ ಉತ್ಸಾಹಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ತೊಂದರೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರು ಬಹಳ ವರ್ಷ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ಕೆಲವೇ ಜನಗಳಿಂದ ಈ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ಕುತಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜವನ್ನು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಜ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ತಾನಾಟಿಗೆ ತಾನೇ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬೀಜ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದು ಒಂದು ಚೂರು ಒಳ್ಳೆ ಜನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಚಿಗುರಿಕೊಂಡು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತೈತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. तमाम मशाइखिन की जाने से आपका क्या पैगाम है आज के विषय पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आज जो है श्री श्री बसवलिंगा मूर्ति स्वामी जी, उनके बसवा ज्ञान मंदिरा में हर साल की तरह इस साल भी जो है माह रमज़ान मुबारक के महीने में इफ्तियार की दावत कराने का आते थे। पिछले 19 साल से और टीपू टाउन में आपको अब 10 या 12वां साल हो रहा है। इसके अव्वल जो है अग्रार में थे। ये वहाँ से भी जो है इफ्तियार की दावत इनकी सरपरस्ती में कराने का आ रही। मैं देख सका मेरे ये ज़िंदगी के तजुर्बे में कि ऐसे ख़यालात के सामी जो है हिंदुस्तान में अगर ढूंढेंगे तो नंबर 1 जो है यही मिलेंगे। ऐसी सोच और ऐसी समझ जो है मैंने इन्हीं की बदौलत से 600 से 700 स्वामी जियों से मुलाकात किया हूँ। इन्हीं की बदौलत से, इन्हीं के साथ रहकर। लेकिन इनके अंदर जो सोच जो है बसवಣ್ಣ का जो है तत्व जो है वो जो है पूरा भरपूर है। इवा यारवा, इवा यारवा, इवा नम्मवा, इवा नम्मवा, ये कौन है, ये कौन है, ये हमारा है, हमारा है करको वो उनकी बात। जिस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज सरकार जो है अजमेर की सरजमीन पर आए, उसी वक्त जो है कर्नाटक के अंदर जो है वो वक्त में जो है अन्ना बसवण्णा जो है ज़हूर में है। अब इन्हों जो है उनके जो ही चाहने वाले इंसानियत को जो है इनके पास जो है ना ज़ात है, ना पात है, ना ये मूर्तियों की पूजा करते हैं। इनका भी क्या है को तो अल्लाह एक नूर है। बिल्कुल। अभी आपने इफ्तियारी के रोज़ा खोलने के बाद नमाज ज़्यादा हुई मगरिब की। जी बिल्कुल। तो मगरिब की नमाज के बाद जो है इन्हों जो है बसवण्णा जी के वचन पढ़े। उसमें जो है वचन में ये हो गया है कि जो है हाथों से बनाए हुए से जो है उसमें खुदा नहीं रहता। इनका ख्याल क्या है ये जो है जाहिर किया। तो दूसरी बात क्या है तो इंसानियत की जो है हर जब भी जो है मुसलमानों के ऊपर जब भी जो है जो जहर उगलने वाले उगलते हैं तो उस वक्त जो है ये सामने आकर जो है हम मुसलमानों के तरफ से ये जो है हमारी बात रखते गए आज तक भी। आज के दौर में जिस तरीके से शहर मैसूर के अंदर अमन का माहौल है ऐसों की तरफ से, तो मैं कर्नाटक ही नहीं सारे हिंदुस्तान के अंदर भी जो है इसी तरीके का माहौल हो। वहाँ के सूफियाँ से, वहाँ के सामियों से भी
मैं गुजारिश करता हूँ कि जिस तरीके से हम मैसूर के अंदर इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ हर कौम मिलकर हैं, आप भी जो है इसी तरीके से मोहब्बतें आम कीजिए, क्योंकि हमें कोई भी बचाने वाला सिवाय दुनिया को बनाने वाले के सृष्टिकर्ता के अल्लाह के सिवा हमारा और कोई नहीं है। इस वास्ते कोई पार्टी वाले पर भी भरोसा करो न को, कोई से लीडर पर भी भरोसा करो न को, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो, नेक अमल करो, तो हमारी दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है। मजबूत थामना तो हमें मिलकर रह गए तो सियासी जमाता क्या भी जो है उन कोशिशां कर को हिंदू मुस्लिम का जो है गलाटे करने की कोशिश करे, तो भी अगर हमें एक हो जाएंगे, हमें सब अगर एक रहेंगे तो उनके क्या भी सियासी क्या भी हिंदुस्तान को जो है बिखरने नहीं देते। हमें हिंदुस्तान की मिट्टी, स्वामी जी ने पहले ही कहा उनके बयान में कि हमें आदम और हवा के बच्चे ही, एक माँ बाप के बच्चे ही। यहाँ पर जो है नाम अलग है, मजहब अलग है, लेकिन उसके आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जो रूह जो फूंकी गई, वो अल्लाह ताला ने कहा कि जब मैं अपनी रूह फूंकूं तो सब सजदे में रहो कर को फरिश्तों से कहा गया था। तो रूह एक ही है, जिस्मा अलग अलग ही, नामा अलग अलग ही, लेकिन हम हैं तो एक ही माँ बाप के बच्चे। अल्लाह ताला हम सबको जो है इसी तरीके से मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, दौरान तासरात स्वामी जी ने ये कहा कि 12 साल पहले आप और जाहिदुल्लाह खान साहब की उनसे मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के बाद आपने टीपू टाउन को उनको यहाँ दावत देकर यहाँ पे न सिर्फ उन्होंने मुद्दों किया, बल्कि आपके टीपू टाउन में एक तरह से गंगा जमनी की तस्वीर पेश करते हुए जहाँ पे मजर टीपू सुल्तान को बनाया, वहीं पे बसवा देना मंदिर को भी तामीर किया। एक तरह का जो हज़रत टिपुल्लाह शेख रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब आपका टीपू टाउन है, उस तरह से वो पैगाम को आपने आम करने की कोशिश की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले मरतबा यहाँ पे आया हुआ था मजर टीपू सुल्तान में, आपने कई गैर मुस्लिम स्वामी हजरत को वहाँ पे मदऊ किया था, उन्होंने बाजमात नमाज भी अदा की थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इफ्तार पार्टी में मैंने देखा कि इसी मंदिर के निचले हिस्से में यहाँ पे मंदिर में मुसलमानों ने बाजमात नमाज पढ़ी। एक तरह से आज एक ऐसा मैसेज है सारे हिंदुस्तान के लिए और उन नफरत फैलाने वालों के लिए एक नफरत एक तमाचा है कि वो चाहे जितना शर्म चले, ऐसे लोग जब तक रहेंगे अमन कायम रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जब 2005 में पहली मर्तबा हमें टीपू टाउन का तस्वुर करे और यहाँ पर आके जगह परचेज़ किए, फिर यहाँ से काम माशाल्लाह 2005 से शुरू हो गया था और तकरीबन मस्जिद बनते बनते टीपू टाउन के अंदर 2006 और 7 के दरमियान इसको ओपन किया गया। लेकिन मस्जिद बनाने के बाद भी बावजूद बहुत सारे मेंबर्स की साइट्स यहाँ पर थे, टीपू टाउन के नाम से इसको मंसूब किया गया था। और हज़रत टीपू सुल्तान के ताल्लुक़ से हमने ये सीखा था और इसी उनके जो ड्रीम है, उनका जो ख्वाब है, इसको लेकर हम आगे बढ़े थे कि हज़रत टीपू सुल्तान जो है हिंदू और मुसलमान को अपनी दोनों आँखों की तरह ट्रीट किया करते थे, इक्वल दोनों को इक्वल दर्जा था उनके दौरान हुकूमत। तो जब उनके नाम से इसको मंसूब किया गया तो जब तक हमारी स्वामी जी से मुलाकात नहीं हुई थी तो एक अधूरापन यहाँ पे महसूस हो रहा था। फिर जब बसवा केंद्र जो वहाँ पे अगरार में है, हम वहाँ पर अक्सर जाया करते थे, वहाँ पर आप इफ्तियार का एक इंतज़ाम किया करते थे सालाना, तो वहाँ पर आपसे मुलाकात हुई बसवालिंगा स्वामी जी से। तो हमें महसूस हुआ कि टीपू टाउन को इन्हें अगर हम लेके यहाँ पर आएंगे तब इंशाअल्लाह टीपू टाउन जो है कंप्लीट होगा और हज़रत टीपू सुल्तान का जो उनका ड्रीम था उस हिसाब से और उस तरीक़े से यहाँ पे जो है ये दोनों, एक तरफ मस्जिद और एक तरफ मंदिर, इस एक कौमी एकजहती का भी सबूत और जो जिस मकसद से इदारा शुरू किया गया वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और मैं बहुत ज़्यादा स्वामी जी का शुक्रिया अदा करूँगी कि वो यहाँ पर आके बसवा ध्याना मंदिरा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो बसवा के जितने बसवन्ना के जितने भी यहाँ पर उनके जो तारीख़ है या उनकी जो तालीम है उसमें भी हर जगह तौहीद नज़र आती है। तो ये यहाँ पर
इस्टेब्लिश होने के बाद में हमें एक कंप्लीट क्रिश्चियन का बहुत एहसास हुआ, जिसके लिए मैं स्वामी जी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और माशाल्लाह जैसे कि आप बता रहे थे, यहाँ पर जो भी टीपू सुल्तान के नाम से जिस तरीके से उस ज़माने में वहाँ पर जो हुआ करता था, अक्सर बहुत सारी चीज़ें हमको बसवालिंगा स्वामी जी से भी सीखने को मिली। तो ये ऐसी शख्सियत हैं जिनसे बहुत सारी बातें सीखने को मिली, और यहाँ पर जो भी आते हैं उनके जो मंदिर में, वो ज़रूर आके हमारे यहाँ मस्जिद में वहाँ पर भी आके मुलाकात करके जाते हैं। और जो वहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर आके एक कौमी एकजुहती का एक मामला, बहुत ही अच्छी फ़िज़ा, और कभी भी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम अलग हैं। एक अपनापन जो है कभी भी महसूस नहीं हुआ, किसी भी फंक्शन में हो या आम तरीक़े से आम दिनों में, तो साथ में रहने का। और यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं, यहाँ के रहने वाले जो मोहल्ले वाले हैं, माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे तरीक़े से एक दूसरे को हम साथ दे के यहाँ पर चल रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि टीपू टाउन जो नृत्य प्रदर्शन के नाम से मंसूब है, ज़रूर, और बिल्कुल, और इस करम है शहीद का, और इससे आगे चल के जो है एक हैदरली टाउन के नाम से भी हम लोग एक मुकाम बनाए हैं, वहाँ पर भी इंशाअल्लाह ऐसी ही एक जहती आपको देखने को मिलेगी। Allah